topics. The topic that we are going to discuss is the verbals. The verbals, what are verbals? As in the ninth class, all of you have studied about these basic concepts of the grammar. Verbals are basically the words that are actually verbs, but they act as a noun somewhere. Now, for example, the examples are given. The example of gerunds. Gerunds are mostly gerunds, infinitive, and participles. These are called the verbals. So we will discuss these three. As in the ninth class, you have studied what is a gerund. Then you have also studied what is an infinitive and what is participle. You are all aware of all these basic concepts. So verbals, there are three types of verbals. When the word verbals comes in your mind, then you must know that this may be a gerund, infinitive, or a participle. These three are included in the definition of verbal. So I hope the concept of verbal is clear to you, that what are, when we say what are verbals, then gerund, infinitive, and participles, these three are called verbals. Now the next slide is, as you have studied about the verb, what is verb? Verbs are mostly the actions that we show. So action words or actions are called verbs. When we study the verbs, because verbals are derived from the verbs, verbals are actually the verbs. So before studying the verbals, you must know about the verb. A verb is any action that we do is called the verb. There are many types of verbs, but for these three, in order to study these three verbals, we must know the finite and infinite type of verbs. There are two types of verbs that we are going to discuss. First one is the finite, and the next one is the infinite. And from infinite or non-finite type of verb, verbals are taken. It means verbals have the link with the infinite verbs. These are the types of non-finite verbs. And in non-finite verbs, first one is written as infinitive, second one is the participle, and third one is the gerund. So these three, infinitive, participle, and gerunds, as I told earlier, these three are collectively called as gerund. These three. These three are called as verbals, not the gerund. For now, the concept of verbal is clear. It means verbals are infinitive, participle, and gerunds. And second thing, verbals are derived from the verbs, and these are the types of non-finite verbs. They have no link with the finite verbs. Then the next slide is that what are these non-finite verbs, from where the verbals are drawn. वर्बल्स को स्टडी करने से पहले आपने ये देखना है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं क्या, जिसमें से ये वर्बल्स निकलते हैं, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का बेसिक डिफरेंस ये भी आप 9th क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी. इसको हम यहाँ से दोबारा से देख लेते हैं. अब नॉन फाइनाइट के यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट टाइप इज द इन्फिनेटिव, and for further there are two types of infinitive. First one is the bare infinitive, second is the to infinitive. These are two basic types, and third one is also the split infinitive, but for your syllabus, bare infinitive or to infinitive is enough. And second type of the non-finite verbs from which the verbals are derived, second is the gerund.
Gerund mostly acts as a noun, and gerund is the V plus ing means verb plus ing form. First form plus ing is equal to gerund. Then there is participle, and you are all aware that there are three types of participle: present participle, past participle, and perfect participle. These are the three basic types. So for non-finite verbs, in the category of non-finite verbs, we study these three verbs. Now, what is the difference between finite and in non-finite verbs? This is the basic concept, that how will we identify the finite and non-finite verb? Because जब आपको non-finite का नहीं पता होगा, तो आप जब verbals को study करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा problem करेगा, क्योंकि verbals जो हैं, verbals क्या हैं? Infinitive, gerunds and participle. इनको वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। वो आगे आप देखेंगे कि हाउ दे आर वर्बल नाउन्स, और इनसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का कोई लिंक नहीं है। आप जब देखेंगे कि आपने इफ यू आर गोइंग टू स्टडी द वर्बल्स, देन फाइनाइट का कोई रोल नहीं है, इस पार्ट का वो कोई रोल नहीं मिलेगा, बट आपने इसके लिए इसको स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ब के टाइप में आ जाता है, तो वहाँ पे दोबारा से नहीं हो सकेगा। यहाँ इस पर्पज़ के लिए हम सिर्फ फाइनाइट पोर्शन को टच करेंगे। अब देख लें फाइनाइट वर्ब, अ वर्ब व्हिच शोज़ टाइम ऑफ, और अ वर्ब व्हिच इज़ लिमिटेड। जिस तरह आपने मैथ्स में पढ़ा है फाइनाइट सेट, व्हाट इज़ अ फाइनाइट सेट? जिसके एलिमेंट्स लिमिटेड होते हैं। कोई भी चीज़ जब फाइनाइट आप कहते हैं तो लिमिटेड, दैट इज़ लिमिटेड टू यू, दैट इज़ इन योर लिमिट्स। एंड नॉन फाइनाइट और इन्फिनिटी, जिस तरह आपने फिजिक्स में या मैथ्स में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको कुछ लिमिटेशन नहीं बताता। तो डेफिनेशन आप देखें, इस पे थोड़ा-सा आप देखें तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अ वर्ब व्हिच शोज़ टाइम, or a verbs which is limited by number, person and gender. For example, अगर किसी वर्ब में टाइम दिया हो, टाइम का तो पता है, टेंसेस जिससे आपको क्लियर हो जाए ये काम अभी हो जाना है, या इतने इतने टाइम तक हो जाना है, या वो एक्शन उस टाइम तक हो जाना है। पहली चीज तो ये है। सेकेंडली, अगर उस जो आप जिस वर्ब को देख रहे हैं उसके अंदर अगर आपको कोई नंबर दिया हो, और पर्सन इतने पर्सन तक लिमिटेड है, 1 2 3, तो वो लिमिटेड होगा, फाइनाइट होगा। जेंडर तक है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेल और फीमेल तक वो एक्शन करते हैं लिमिटेड, दैट विल बी अ फाइनाइट। अगर इसी का अपोजिट करें, अगर ये चीजें, इस पहली चीज ये इज नॉट लिमिटेड, नॉन फाइनाइट में कोई भी वर्ब होगा, इसका आप रिवर्स करेंगे, इज नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, इज नोन एज द नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट का बेसिक कंसेप्ट आप दोबारा से अगर इसको समराइज करें, फाइनाइट वर्ब इज लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और जेंडर, वेयर एज नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड। अब फाइनाइट की डेफिनेशन करें, नॉन फाइनाइट की इसकी अपोजिट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, बिकॉज आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता कि व्हाट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, you have to identify finite and infinite verbs. So the examples are given. As the first example in non-finite verb is Neha writes letter. अब कैसे पता चला हमें ये finite verb है? Because अब देखें, नेहा writes letters, simple present, letter लिखती है, means के अभी वो letter लिखती है, तो आपको टाइम को पता चल गया। दे राइट लेटर, वो लेटर लिखते हैं, अभी लिखते हैं, टाइम का आपको पता चल गया। और ये लिमिटेड है। और अब देखें किस तरह लिमिटेड है। पहले में देखें, नेहा राइट्स लेटर, एक तो टाइम का पता चल गया कि अभी वो लेटर लिखती है। सेकंडली, नेहा जो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट है, और ये लेटर का लिखना यहाँ पे सिर्फ नेहा से इसका रिलेशन है। अब नेहा तक ये लिमिटेड है, सो इसलिए हम कहते हैं कि सब्जेक्ट तक अगर लिमिटेड वर्ब हो, अब वर्ब राइट सिर्फ यहाँ पे नेहा तक लिमिटेड है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, और किसी और से लिंक नहीं है। इसलिए ये दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक कि पर्सन तक लिमिटेड होगा या किसी जेंडर तक, तो ये भी फाइनाइट है। देन आप इसको जब थर्ड देखते हैं एग्जांपल, दे राइट, तो इसमें भी यही है।
आप दे हैव रिटन, तो आप देखें दे हैव रिटन लेटर, वी हैव, तो वी तक ये आपका जो लिमिटेड है, इसलिए इसको फाइनाइट। सर ये जो सर फाइनाइट वर्ब की सर डेफिनेशन है सर, ये दोबारा दफा समझा दें सर, ये एग्जांपल ये जैसे नेहा राइट्स लेटर्स वाली सर, ये नहीं समझ आई मुझे। आप इस एग्जांपल को अगर आप देखें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की, हम कॉन्सेप्ट बेसिक ये है कि फाइनाइट विल बी लिमिटेड बाय नंबर्स, या तो नंबर से रिप्रेजेंट होगा, लिमिटेड होगा, और बाय पर्सन, किसी मखसूस शख्स तक लिमिटेड होगा, किसी जेंडर तक लिमिटेड होगा, और या किसी सब्जेक्ट की जेंडर तक, जो सब्जेक्ट होगा उसका। अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखी, नेहा राइट्स लेटर, इसमें वर्ब है राइट, आपको राइट से क्वेश्चन जो आएगा कि राइट अंडरलाइन होगा, आपको लिखा होगा कि ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट है, हेल्पिंग है, लिंकिंग है, जो इसके टाइप्स हैं, जो हम कल वर्ब की टाइप्स करेंगे सारी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अब आप देखेंगे नेहा राइट्स लेटर। अब आप फाइनाइट और इनफाइनाइट के क्राइटेरिया पे देखें तो नेहा सिंगल सब्जेक्ट है और लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, और सिंगल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो वर्ब है ये लिमिटेड है सिर्फ इन दोनों के दरमियान, और ये टाइम भी बता रहा है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपको फाइनाइट वर्ब बताएगा कि कोई भी एक्शन का टाइम क्या है, तो टेंस आपको बताएगा। अब देखें नेहा राइट्स लेटर, आपको पता चलता है कि नेहा अभी खत लिखती है, टाइम पता चल गया, लिखती है या लिखेगी भी होता फ्यूचर का, आपको टेंस यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लिमिटेड है। अब देखें टाइम कहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, सेकंड एग्जांपल भी देखें, रहमान ट्राइज टू सिंग। अब देखें रहमान ट्राइज टू सिंग, इस एग्जांपल में देखें कोशिश करता है, कब करता है कोशिश, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि तो गाने की कोशिश करता है। अब इसमें टाइम भी क्लियर नहीं हो रहा, और इसमें आप देखें ये लिमिटेड जो जेंडर की हद तक है वो भी नहीं है, जो जो इसकी फाइनाइट की डेफिनेशन है। इसी तरह सेकंड में जब आप देखें दे राइट लेटर्स, तो यहाँ पे दे के साथ सब्जेक्ट के साथ राइट का डायरेक्ट लिंक है, दे राइट लेटर्स, तो ये इसके साथ लिमिटेड है इस सब्जेक्ट पे। वी ट्राई टू सिंग, सेकंड एग्जांपल में देखें वी ट्राई टू सिंग, हम कब कोशिश करते हैं गाने की, आज करते हैं, कल करते हैं, कब, किस टाइम पे ये कहा गई बात, इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा कि बात कब कही। अब थर्ड इसका है वी हैव रिटन लेटर्स, हम लिख चुके हैं, अभी लिख चुके हैं, टाइम को पता चल चुका है कि हम खत लिख चुके हैं, यानी अभी लिख चुके हैं। अब सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे सारी की सारी टू सिंग किया है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, तो दे ट्राई टू सिंग, वो गाने की कोशिश करते हैं, कब करते हैं, कोई टाइम यहाँ पे इस सेंटेंस से आपको नहीं मिल रहा। सो ये नॉन फाइनाइट का यहाँ पे इसका बेसिक है। अब आप इसको फर्दर जब आप देखेंगे फाइनाइट नॉन फाइनाइट का, ये हम वर्ब की टाइप्स में भी करेंगे, जो कल आप करेंगे उसमें, और सारी वर्ब की 9 टाइप्स हम करेंगे ताकि आपका ग्रामर थोड़ा ठीक हो जाए। जो आपने 9th में की है, तो 10th में करनी है, और कुछ जो फर्स्ट ईयर के लिए भी ज़रूरी होती हैं, वो भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। जो ऑल हैं वो कल उसमें कर लेंगे, जिनमें हेल्पिंग, लिंकिंग, फिर इस तरह से सारी टाइप्स आ जाती हैं। ऑक्सिलरी क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, देन ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो वर्ब के टॉपिक में वो सारा दोबारा से भी कल हो जाएगा। बट फॉर नाउ हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारा वर्बल का जो टॉपिक है वो नॉन फाइनाइट पे फोकस्ड है। अब आप इसको ज़रा नेक्स्ट स्लाइड को देखें, यहाँ से एक और आपको क्लियर हो जाता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट का। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब्स एग्रीज विद द सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। यहाँ पे आप देखें माय सिस्टर वेंट टू स्कूल। अब अगर आप फाइनाइट की एक और एग्जांपल दूसरी क्राइटेरिया पे देखें कि आपको फाइनाइट लिमिटेड होगा, आपको किसी टाइम की लिमिट होगी। अब देखो माय सिस्टर वेंट टू स्कूल, पता चल गया कि पास्ट टेंस में है, माय सिस्टर, मेरी सिस्टर स्कूल गई। अब टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम अनदर वर्ब है। अगर टू बिकम अ डॉक्टर, कब बनेगी डॉक्टर, 3 साल, 5 साल, वैसे तो 5 साल होता है, लेकिन अब इसमें फेलियर के भी चांसेस होते हैं, अदर फैक्टर्स भी होते हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। अब पहला जो आपको दिया जाए, आपको पेपर में जो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, दो वर्ब होते हैं सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है माई माई सिस्टर वेंट टू स्कूल टू बिकम अ डॉक्टर, तो फाइनाइट वर्ब जो है आप देखें सब्जेक्ट को लिमिटेड कर रहा है, माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, आपको क्लियर हो गया कि वो चली गई, टाइम का पता चल गया, बाउंड है यहाँ पे। टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम सेकंड वर्ब आ गया। अब अभी जाएगी, आज ही डॉक्टर बन जाएगी, कल बनेगी, कब बनेगी, तो ये क्लियर नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट है। तो हमारा फोकस जो होगा नॉन फाइनाइट पे होगा।
अब इसके बाद हम नॉन फाइनाइट की जो 3 टाइप्स हैं जो कि वर्बल्स हैं वो हम देखते हैं। व्हाट आर वर्बल्स और व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट। पहले जिस तरह स्लाइड के स्टार्ट में था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्बल्स जो आपने 9th में भी पढ़नी है डिटेल से, और यहाँ पे मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आगे इजी हो, बिकॉज 9th में आपको गैप भी था काफ़ी, और आगे कॉलेज लेवल पे आपके ग्रामर बेसिक सारा यही होता है, और आप जहाँ पे कर लेते हैं वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। देन वर्बल के 3 टाइप्स हैं, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। ये पहले ही डिस्कस फर्स्ट स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि वर्बल्स क्या होते हैं। 3 जब वर्बल का नेम आए तो आप इनको कहते हैं। अब इनको वर्बल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब से डिराइव हैं। अब कौन से वर्ब से डिराइव्ड हैं हमने ये भी लिख लिया, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द नॉन फाइनाइट कैटेगरी ऑफ वर्ब। वर्ब की नॉन फाइनाइट कैटेगरी को जब हम उठाते हैं वहाँ पे हम जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल को देखते हैं। अब इसके बाद ये है gerund, participle and infinitive और formed। जब आप इसको देखें तो इस वाले को फर्स्ट को the three verbal gerund, infinitive and participles are formed from verbs। verbal इसलिए कहते हैं क्योंकि ये verb से बनते हैं, but are never used alone as action verb in sentence। और verbal को आप देखेंगे कहीं पे भी action verb के तौर पे नहीं होंगे। अगर आप बैक में पिछले एग्जांपल पे आपको लेके जाऊं, आपको वहां पे देख लें। अब नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब माय सिस्टर वेंट टू स्कूल। अब देखें वेंट पहले क्या है, अगर आप एक्शन वर्ब में आए, हमने ये भी कल वर्ब पढ़ना है तो आप उसमें देख लेंगे एक्शन क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं। तो माय सिस्टर वेंट टू स्कूल, वेंट एक्शन है, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट वर्बल के होते ही नहीं है, वर्बल की कैटेगरी नॉन फाइनाइट की। अब देखें टू बिकम अ डॉक्टर, बिकम कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है, एक्शन वर्ब्स में नहीं आता, तो इसलिए यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है। दूसरे क्राइटेरिया पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जो एक्शन वर्ब नहीं होगा वो नॉन फाइनाइट होगा, और आप 3-4 क्राइटेरियाज पे अप्लाई करके उसको इजीली आप कर सकते हैं। देन आगे इस पे मूव करें। इंस्टेड वर्बल फंक्शन एज अ नाउन। ये जो इम्पोर्टेंट है कि वर्बल की क्वालिटी दे एक्ट एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ये इन 3 कैटेगरीज में करते हैं। जब आप इनको देखते हैं इनका फंक्शन, दीज वर्बल्स आर इम्पोर्टेंट इन फ्रेजेस। अब वर्बल्स इसलिए कर रहे हैं हम, आगे आपको जेरेंड फ्रेज भी करना है, इन्फिनेटिव फ्रेज भी करना है, पार्टिसिपल फ्रेज भी करना है, इसी तरह क्लॉजेस भी इनकी करनी है। तो उससे पहले पता हो कि ये हैं क्या जिनकी हम क्लॉजेस करेंगे। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि वर्बल नॉन फाइनाइट वर्ब से, और वो एक्शन वर्ब्स नहीं होते। अब हम वर्बल्स की फर्स्ट टाइप को ओवरव्यू कर लेते हैं। आपने 9th में डिटेल से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा मैं इसलिए थोड़ा फास्ट मूव कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम भी थोड़ा लिमिटेड होता है, फाइनाइट टाइम होता है जिस तरह फाइनाइट वर्ब्स है। सो द जेरेंड, फर्स्ट टाइप जो वर्बल की है जेरेंड। अब व्हाट इज जेरेंड, ये आपने अगर किसी ने 9th में किया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं कि जेरेंड होता क्या है, जेरेंड को कैसे आप करते हैं। तो एक दो वर्ड्स में यहाँ पे चैट अगर मैंने इनेबल किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखते हैं, अगर सबके लिए है एवरीवन, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बेसिक जब देखते हैं हम जेरेंड को, तो जेरेंड मोस्टली इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। मोस्टली इनको नाउन्स ही लेते हैं, नाउन्स के तौर पे एक्ट करते हैं जेरेंड। और जेरेंड का क्वेश्चन मोस्टली आपको पार्टिसिपल के साथ आता है, बिकॉज अब जेरेंड की जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं हम जेरेंड के, तो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ जेरेंड हमने ये देखा कि जेरेंड में आपको जब भी हम जेरेंड लिखते हैं तो जेरेंड में ये होता है कि V1 प्लस ING, ये होता है। अब पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी V1 प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये जेरेंड भी है और पार्टिसिपल भी है। अब दोनों ऑप्शन आपको आते हैं इसमें कि ये जेरेंड है या पार्टिसिपल, जो भी सेंटेंस आपको गिवन हो। तो इसके बाद पार्टिसिपल भी पढ़ेंगे। तो जेरेंड और पार्टिसिपल में बेसिक डिफरेंस ये है कि जेरेंड एक्ट एज अ नाउन, नाउन के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए वो पार्टिसिपल से डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट सी एग्जांपल जो आपने की बुक में भी थी 9th में, अगर आपने ग्रामर को स्टडी किया हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो एग्जांपल भी जो आपकी वहाँ पे थी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जेरेंड पार्टिसिपल क्या होता है।
अब फर्स्ट देखें, स्मोकिंग इज इंजूरियस और बैड हैबिट, आप कोई भी लिखते हैं, और मैं सेकंड लिख देता हूँ इज स्मोकिंग। अब जब मैं इस एग्जांपल पे मैं इसको देखूं तो यहाँ पे इसको आपने करना क्या, आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है जो यहाँ पे है कि आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट में देखें तो ये पार्ट अंडरलाइन है, सेकंड में ये पार्ट अंडरलाइन है, और नीचे दोनों में आपके पास ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन ए जेरेंट, ऑप्शन बी इज पार्टिसिपल, ऑप्शन सी इन्फिनेटिव, ऑप्शन फोर कोई भी हो सकता है, अदर दे देते हैं इसमें। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल में स्मोकिंग क्या है, कहीं पे है कोई आपको कोई चैट वगैरह कुछ, उसमें लिखते हैं। फर्स्ट का देखें स्मोकिंग, स्मोकिंग वर्ड अंडरलाइन है फर्स्ट में, और सेकंड में भी स्मोकिंग अंडरलाइन है, तो फर्स्ट और सेकंड में क्लियर करते हैं। गुड, यहाँ पे आ गया। गुड, फर्स्ट में जो है वो जेरेंट है, सेकंड में जो है वो पार्टिसिपल है। देखें वर्ड एक ही है, स्मोकिंग स्मोकिंग। फर्स्ट में स्मोकिंग इज बैड हैबिट, ये सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है। सेकंड में ही इज स्मोकिंग, तो वहाँ पे वो वर्ब जो पार्टिसिपल हो जाता है, तो आपको जेरेंट और पार्टिसिपल का बेसिक क्वेश्चन इस तरह से आता है। आप जेरेंट के ऊपर देखें, यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल हमारी है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इज जंपिंग इज फन। अब जंपिंग की बात हो रही है, जंपिंग इसमें नाउन के तौर पे काम कर रहा है। अगर इसी का होता है ही इज जंपिंग, तो आप जंपिंग को पार्टिसिपल करते, इसमें ये क्या है, जेरेंट है। देन अनदर एग्जांपल फ्रॉम दिस इज गिवन, ही लाइक्ड स्कीइंग, he liked skiing, he liked what किसी चीज का नाम होता है, इस तरह हमने नाउन क्लास में भी पढ़ा है, तो ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कीइंग, सो ये आपका जेरेंट होगा। अगर ये होता है ही इज स्कीइंग, तो आप वो कर लेते पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि उसके भी टाइप्स हैं। अब लास्ट है ही हैड अ यूनिक वे ऑफ whistling, whistling, he has a unique way of whistling। अब आप इसमें देखें, सर ये जो ही लाइक स्कीइंग वाली एग्जांपल है सर, ये नहीं समझ आ रही कि इसमें सर ये स्कीइंग जो है ये किस तरह चरण बन गया। अब देखें ही लाइक्ड वट, अगर देखें वट का आंसर हो रहा है, उसने क्या पसंद, ही लाइक्ड स्कीइंग, यानी स्कीइंग एक चीज है जिसे वो पसंद करता है। स्कीइंग क्या है, एक गेम है जो आप खेलते हैं, ठीक है। अब देखें अगर मतलब कि ये, सर जो भी जेरेंट है उसके साथ हम लोग डब्ल्यू मतलब वट का अगर लगाएं उसके साथ वट, हाँ वट, तो वो वट उसको का, अगर आंसर करे। जी जी, जरूरी नहीं है, लेकिन इसका ये है कि वर्ड का आंसर करेगा तो जाहिर है वो नाउन होगा, और जेरेंट्स होते ही नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं। जेरेंट और पार्टिसिपल में बेसिक डिफरेंस यही है। तो आप इसमें यहाँ अगर वर्ड का आंसर करेगा ही लाइक वर्ड, आपको पता चलेगा वर्ड कोई चीज है, कोई भी प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये गेम का नाम है ही लाइक दैट गेम, इट मीन्स, तो ये स्कीइंग यहाँ पे जेरेंट है। अगर ये होता है ही इज स्कीइंग नाउ, अभी वो एक्शन कर रहा है, वो तो वर्ब हो गया, तो वर्ब को पार्टिसिपल भी कहते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते ओके हैं। सर। अब ही हैज अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग। अब देखें ही हैज अ यूनिक वे ऑफ व्हाट, यहाँ पे विस्लिंग तो अगर आप ऐसे देखें तो वर्ब लग रहा है, लेकिन ही हैड अ यूनिक वे ऑफ व्हाट, किसका, उसका था विस्लिंग। विस्लिंग एक फन है, या फिर जो आप करते हैं, तो एक आर्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी जेरेंट है। अगर इसका ये होता है ही इज विस्लिंग राइट नाउ इन द क्लास, तो विस्लिंग वहाँ पे क्या हो जाता, वहाँ पे पार्टिसिपल होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आप इसको नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ताकि हमारा तीनों आज हो जाए, अभी टाइम शॉर्ट है। तो अब इसमें देखें तो इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का हमने बेसिक स्ट्रक्चर 9th में जो पढ़ा था, वहाँ पे जो आपके लेवल पे है वो हम यही पढ़ते हैं कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अगर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू गो, टू स्लीप, और कोई भी इसी तरह टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं। बेसिक इसकी डेफिनेशन ये है, लेकिन इसके टाइप्स भी हैं जो अपने 10th में बल्कि कॉलेज में भी होती हैं। एक जिस तरह बेयर इन्फिनेटिव होता है, फिर इसी तरह से आप इसको नॉर्मल इन्फिनेटिव में इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का लिखा है इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसकी डेफिनेशन में लिखा है इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। जब हम टू के बाद बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है वो लगाते हैं, तो ये इन्फिनेटिव होता है।
अब यूजुअली इट फंक्शन एज द नाउन, ये नाउन के तौर पे फंक्शन कर सकता है, इसीलिए इन सब को हम वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। जब भी वर्बल नाउन्स की बात आती है तो वर्बल्स को जो नाउन के तौर पे एक्ट करते हैं हम उनको वर्बल नाउन्स कहते हैं, क्योंकि होते ये वर्ब है बट इनका फंक्शन नाउन के तौर पे होता है। ऑल्दो इट कैन आल्सो फंक्शन एन एडजेक्टिव ऑन एडवर्ब, ये इन्फिनेटिव का लिखा हुआ है। अभी इसके एग्जांपल इन्फिनेटिव की यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टू जंप इज फन। अब आपको इस क्वेश्चन यही आएगा कि आप इसको आपके पास ही आता है, इसको अंडरलाइन कर देता है फर्स्ट पार्ट को कि टू जंप इन फन में ये पार्ट क्या है, इन्फिनेटिव है, जेरेंट है, जो भी ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो आप देखें टू जंप इज फन, यहाँ पे ये नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, टू जंप इज फन। अगर आप टू जंप को हटा के देखें इज फन, व्हाट इज फन, व्हाट का आंसर करता है, इसका मतलब ये नाउन को कर रहा है। तो टू जंप इज फन इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव नाउन के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब सेकंड में देखें आई लाइक टू स्की, आई लाइक टू स्की। अब टू स्की को देखें, अगर अंडरलाइन होता है आपके पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आपके पास क्या होगा, आपका ये भी जेरेंट होगा, सॉरी इन्फिनेटिव होगा। और आई लाइक व्हाट नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इन्फिनेटिव नाउन के तौर पे एक्ट कर सकता है, एडवर्ब के तौर पे एक्ट कर सकता है, वर्ब के। मोस्टली ये इनको वर्बल नाउन्स कहते हैं, यहाँ पे ये हो जाता है। तो अब आपको देखें शी हैड ए सजेशन टू ऑफर मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है, ही कॉल्ड टू वार्न हर टू वार्न। बेसिकली याद रखें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे भी हो आप उसको इन्फिनेटिव कर लें, और इसकी डिटेल हम साथ साथ इसको करते रहेंगे। अब आगे इसके बाद जो बचता है इन्फिनेटिव का कुछ टाइप्स हैं, यहाँ पे इसको देख लें अगर, तो इन्फिनेटिव में यहाँ पे ये है यूज क्या है, टू इंडिकेट द पर्पज ऑफ एन एक्शन, फर्स्ट फंक्शन इसका है। एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कहाँ पे यूज हुए हैं, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ग्रामर में काफी डीप टॉपिक्स हैं जो हम इनको भी टच देंगे कभी। बट अभी देखें आप, तो इसका फंक्शन ये है, यहाँ पे देखें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट एग्जांपल इज टू गिव, टू प्रिवेंट, टू वेट, टू स्विम, टू राइट। जहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है वहाँ पे आप देखें एज अ सब्जेक्ट एट द स्टार्ट में आता है क्लास, तो आप इसको इस तरह से देखेंगे। और जब हम इसको देखते हैं कि जेरेंट आपका ये इन्फिनेटिव हो गया। अब नेक्स्ट पे जब आप आते हैं, कुछ स्लाइड आप देख लें। और नेक्स्ट में अब इन्फिनेटिव को जब हम क्लोज करते हैं तो ये लास्ट स्लाइड है आपकी, इसमें जेरेंट इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल रह जाएगा, तो हम पार्टिसिपल वर्ब के साथ साथ हो गया, वो तो वर्ब है। इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। पहली चीज आपको ये पता चल गई कि सारे डिस्कशन में हमने यही किया, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये सारे वर्ब नॉन फाइनाइट हैं, जेरेंट पार्टिसिपल तीनों। इन अदर वर्ड इट कैन नॉट बी द मेन वर्ब, मेन वर्ब कभी नहीं होगा इन द सेंटेंस। एंड इन्फिनेटिव, अब कैसे पता चलेगा कि अब, क्योंकि जब आप बेयर इन्फिनेटिव पढ़ेंगे वो तो वर्ब लगेगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि वो मेन वर्ब नहीं है, देन दैट विल बी ए बेयर इन्फिनेटिव, नीचे बेयर इन्फिनेटिव का आ रहा है। आपको अक्सर ऑप्शन ये भी दे देता है कि इन्फिनेटिव है या नहीं, लेकिन आपने याद किया होता है कि सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही इन्फिनेटिव है। ऐसा नहीं होता, कहीं पे एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, इसकी टाइप्स हैं, तो वो भी हम इसमें उसके लिए ये लिखा हुआ है कि वो मेन वर्ब नहीं होगा, और नाउन के तौर पे या एडजेक्टिव एडवर्ब के तौर पे ही एक्ट कर रहा होगा। इसके अलावा है तो आप उसको वर्ब मार्क करेंगे, इन्फिनेटिव नहीं होगा। यहाँ पे लिखा यू मस्ट टेक अ ब्रेक, यू मस्ट मॉडल वर्ब आ गया, टेक अ ब्रेक ये इन्फिनेटिव है। इस क्राइटेरिया पे इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव मीन जिसमें टू ना लगा हो। अब मोस्टली आपको टू वाले आते हैं, बट एक ऐसा भी दिया जाता है जो टू में नहीं होता और वो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसने आपने देखनी है। पेयर को हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी कल जो पार्टिसिपल के साथ इसको डिटेल में देख लेंगे, बिकॉज क्लास टाइम अभी ऑलमोस्ट आपका एंड है। देन इसके बाद फिर आप ये लास्ट था, तो हम पार्टिसिपल को कल देख लेंगे, टाइम नहीं है, और इन्फिनेटिव से ही स्टार्ट कर लेंगे, इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। देन वी विल डू द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, जो ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स हैं, ताकि आपके वो रिवाइज हो। तो आज के लिए सिर्फ ये माइंड में रखें, व्हाट आर वर्बल्स, वर्बल्स और देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्बल्स। तो आप उसमें देखेंगे इन दोज थ्री टाइप्स, जेरेंट और इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब इनको वर्बल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। थर्ड थिंग, वर्ब की कौन सी कैटेगरी से हैं, तो आप देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब से हैं। एंड व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो हमने यहाँ पे कर लिया। तो आपके माइंड में सिर्फ ये हो कि वर्बल क्या होते हैं,
फिर जेनेंट इन्फिनेटिव और ये चीज़ ये था आपका। यहाँ से 1-2 एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो ये कॉलेज तक बल्कि आप जहाँ पे भी ऊपर जाते हैं तो आपके अगर 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अच्छा वहाँ पे कर लेते हैं। ओके जी, ये ओरल था, इसमें कोई भी आपको एक्टिविटी इस तरह से असाइनमेंट नहीं है। मैं आपको उसकी वर्कशीट कल ही भेजूँगा वर्क के साथ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। थैंक यू। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है तो वो आप जॉइन कर लें बेशक। जो रह गया कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे।